Hello friends, welcome to my channel. My channel name is Excel Master 93. Today I came with a new video. In this video we will learn some if and some if yes. So I hope if you are a Excel user, then some if and some if yes is a very useful, and every Excel user use this on a daily basis, and it will help you to more. So here you can see I have taken a one data. In this sheet, I have taken only country, state, product category, subcategory. So on the basis of country, state, product category, and subcategory, we need to find out order quantity, unit cost, unit price, cost, and revenue. So we need to work on this sheet, but my base file will be this. So this is my base file. So you can see it's my master data. In this sheet, total row is 1,13,036. So in this sheet, column name is like date, year, customer ID, employee code, customer age, customer gender, country, state, product category, subcategory, product, order quantity, unit cost, unit price, cost, and revenue. So here you can see in this sheet I have a duplicate value like country, duplicate value of state, product category, subcategory. But in this sheet, I have taken only unique value like unique value of country, state, and product category and subcategory. So here we will find out uh, order quantity, unit cost, unit price, cost, and revenue on the basis of country, state, product category, and subcategory. So if you will see this video from starting to end without escape, then after this class you won't have any doubts regarding some if and some if yes, because I will cover everything regarding some if and some if yes. So please don't skip the video, and please see this video from starting to end. So let me show you uh, some if and some if yes one by one. So first I'm going to show you some if. So actually most people get confused in some if and some if yes, but in this class I will cover everything and explain you one by one. So first let me show you some if. What is some if and how we can use this? So type some if. So here you can see some if, and below is some if yes. So first I'm going to show you some if. So here you can see the first parameter is range, comma, criteria, and some range. So my range will be from my backup sheet. Country column will be my range, comma. Now it's asking criteria. So my criteria will be this, comma. Now it's asking some range. So we need to find out order quantity. So you need to select order quantity column, then enter. You can see it's a 1,92,259. So my country is Canada, and my total order quantity is 1,92,259. So let me show you how it will work. So in my master sheet I am selecting Canada. So here
In L column, you can see order quantity. So I'm selecting all the range. So here in bottom, you can see it's coming 1,92,259. So in my sheet, you can see it's a correct figure. So after some if yes, I will show you some if yes also. So please don't skip the video. यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको सम इफ के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं सारे हम कवर करने वाले हैं। सो आपको वीडियो में बने रहना है स्टार्टिंग टू एंड तक। सो आप देख सकते हैं कि हमने कंट्री के बेसिस पे अपने बेस फाइल से ऑर्डर क्वांटिटी निकाल के यहाँ पे लाके दे दिया। सो यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाया भी ये सिर्फ ओनली सम इफ और सम इफ एस में क्या डिफरेंस है मैं वो भी बताता हूँ। जस्ट लेट मी शो यू। हियर आई एम टाइपिंग सम इफ एस। सो आप देख सकते हैं सम इफ एस मैंने टाइप किया। यहाँ पे आप देखेंगे जो पहले मैंने सम इफ लिया था वहाँ उसमें जो पैरामीटर था वहाँ पे पहला फर्स्ट थिंग क्या था, रेंज था, देन क्राइटेरिया था, देन लास्ट में सम रेंज था। बट अगर आप सम इफ एस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट जो पैरामीटर ये पूछ रहा है ये सम रेंज पूछ रहा है। फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे सम रेंज पूछ रहा है। बट आपने अगर देखा रहेगा सम इफ में तो वहाँ पे सम रेंज लास्ट में पूछता है। तो ये तो एक बड़ा डिफरेंस हो गया सम इफ और सम इफ एस का। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप एक्सेल के जितने भी फंक्शन हैं अगर आप प्रॉपर पैरामीटर्स और सिंटेक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक्सेल में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, जो कि आपको प्रॉपर पैरामीटर फॉलो करना ही है। बिकॉज अगर आप सिलेक्शन सही नहीं ले रहे हैं तो आपका जो आउटपुट है वो करेक्ट नहीं आएगा और फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी नहीं बढ़ेगा कि हमको सिलेक्शन कैसे लेना है, कहाँ से सिलेक्शन लेना है, कहाँ से नहीं लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सम इफ एस मैंने किया, सम रेंज में मैंने कुछ भी सिलेक्ट किया, सपोज कॉमा दिया। यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, कॉमा क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन मैंने ये ले लिया। ठीक है। तो सबसे जो बड़ा डिफरेंस है सम इफ और सम इफ एस में मैं आपको वो दिखाता हूँ। अगर आप सम इफ यूज कर रहे हैं, मैं बगल में आपको वापस से दिखा देता हूँ। अगर आप सम इफ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। सपोज मुझे कंट्री के बेस पे वो मास्टर शीट से टोटल क्वांटिटी निकाल के लेके आना है, या स्टेट के कॉलम के बेसिस पे क्वांटिटी निकाल के लेके आना है, प्रोडक्ट कैटेगरी के बेसिस पे क्वांटिटी निकाल के लेके आना है, या सब कैटेगरी के बेसिस पे आपको क्वांटिटी निकाल के लेके आना है। तो आप इसमें से सिर्फ एक ही कॉलम के बेसिस पे आप आउटपुट निकाल के लेके आ सकते हैं। क्योंकि आप इसमें देखेंगे रेंज, रेंज में हमारा सपोज कंट्री कॉलम हो जाएगा वो मास्टर शीट से, देन क्राइटेरिया में मेरा ये सिलेक्शन हो जाएगा, देन लास्ट जो है हमारा सम रेंज है। इसमें आप सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। बट सम इफ एस में क्या बेनिफिट रहता है, ये मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिया है, कंट्री, स्टेट एंड प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी। तो सम इफ एस का जो बड़ा बेनिफिट है उसमें हम मोर देन वन कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट इसका मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आपको 2 कंडीशन लगाना है, 3 कंडीशन लगाना है, 4 कंडीशन लगाना है, 5 कंडीशन लगाना है, 6 कंडीशन लगाना है, जितना भी लगाना है आप इसमें ऐड करते जाइए। आप देख सकते हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स लिए हैं। सपोज मुझे वो मास्टर शीट से कंट्री मेरा ये हो और उस कंट्री के अंदर मेरा स्टेट ये हो, और उस स्टेट के भी अंदर मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लेना है, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर भी मुझे सब कैटेगरी का फिल्टर लगा के सिर्फ उसका ही सम निकालना है, पूरा का पूरा मुझे ओवरऑल में नहीं निकालना है। तो ये जो है सम इफ एस का जो बड़ा बेनिफिट होता है, ये सम इफ एस का बेनिफिट है। तो आप सम इफ एस में आप मोर देन वन कंडीशन ले सकते हो। बट अगर आप सम इफ यूज कर रहे हो
तो सिर्फ आप एक ही कंडीशन ले सकते हो। सपोज आपके पास स्टेट है, रीजन है, लोकेशन है, या कोई प्रोडक्ट कोड है, या एम्प्लॉय कोड है, तो आप उसके बेसिस पे सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई करके आउटपुट निकाल सकते हैं। बट अगर आप सम इफ यस यूज कर रहे हैं तो उसमें आप सम इफ में ऐसा नहीं है कि आपको मोर देन वन कंडीशन ही लगाना है। अगर आपको सिंगल कंडीशन भी देना है, जैसे मैंने सम इफ में निकाल के दिखाया आपको, तो आप वन कंडीशन भी देके निकाल के आउटपुट निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि सम इफ एस ओनली मोर देन वन कंडीशन रहेगा तभी काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। तो डोंट वरी फॉर दैट। सो मैं अपने जितने भी एक्सेल यूजर रहेंगे, मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि आप जब भी आप सम इफ फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आप हमेशा ट्राई करिए कि आप सम इफ यस वाला ही चूज करें, क्योंकि उसमें अगर आप सपोज आपने एक कंडीशन के बेसिस पे आउटपुट निकाला, ठीक है, बट अगर आपके बॉस ने या आपके टीम मेंबर ने आपको बोला कि मुझे उसमें ये भी फिल्टर ऐड करो, ये भी फिल्टर ऐड करो, मतलब 2 कंडीशन लगाओ, 3 कंडीशन लगाओ, मेरा स्टेट ये हो, कंट्री ये हो, लोकेशन ये हो, तो आप उसमें वन बाय वन उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं तो अपने सारे एक्सेल यूजर को यही सजेस्ट करूंगा कि इफ यू आर गोइंग टू यूज सम इफ, देन ऑलवेज ट्राई सम इफ एस। तो अभी यहाँ पे हम दिखाते हैं सम इफ, तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम यहाँ पे लेते हैं सम इफ एस। मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ। सम अगर आप सपोज आप सम इफ ही यूज कर रहे हैं, आपको एक ही कंडीशन लगाना ही है, आप सोचते हैं कि मुझे मल्टीपल कंडीशन वाला सम इफ यस नहीं यूज करना है, तो इसमें अभी यहाँ पे सपोज मैंने ऑर्डर क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा लास्ट जो एल कॉलम है, मैं अभी इसको रिमूव कर देता हूँ, कॉमा दिया मैंने। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है सम रेंज। तो सम रेंज का जो मेरा सिलेक्शन रहेगा, मेरे बैकअप वाले शीट में से जो मास्टर शीट रहेगा, ये एल कॉलम में आप देख सकते हैं कि ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है, और सो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्शन दूंगा और एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हैं आउटपुट तो वही आया, लेकिन आप देखेंगे कि यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, अगर आपका यहाँ पे और वो वाले पहले शीट में अगर सीक्वेंस में है, आपका जो ऑर्डर सीक्वेंस है, तो यहाँ पे जो मैंने इसको फ्रीज किया, सपोज मुझे यूनिट कॉस्ट भी अगर लगाना है, निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये सिर्फ इस फॉर्मूले को कॉपी करके राइट साइड में पूरा का पूरा पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ रहा है राइट, और आपका जो मैंने ये B5 कनाडा, क्योंकि जब आप राइट साइड में, मैंने आपको देखा रहेगा, मैं अपने हर वीडियो में बताने का कोशिश करता हूँ कि आपको सिलेक्शन प्रॉपर लेना है। सपोज अगर मैंने फॉर्मूला या फंक्शन सिर्फ एक ही कॉलम के लिए अप्लाई किया, तो जो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, ये जो मैंने क्राइटेरिया लिया है, इसको फ्रीज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अगर एक ही कॉलम में आपको फॉर्मूला लगाना है, तो आप उसको नहीं फ्रीज करेंगे तो भी चलेगा। मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे ये कंट्री के बेसिस पे ओके, सो कंट्री के बेसिस पे आप देखेंगे यहाँ पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये आप देख सकते हैं मेरा कंट्री रिपीट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे तो रिपीट हो रहा है बट मेरा जो स्टेट है वो अलग रहेगा। सो मुझे मोर देन वन कंडीशन लगाना है, तो इसके लिए मैंने ये 4 कॉलम्स लिए हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी, आपका जो आउटपुट निकल के आएगा वो करेक्ट ही निकल के आएगा। अगर मुझे एक ही कॉलम के बेस पे आउटपुट लेना है, तो मैं यहाँ पे भी जो कंट्री कोड मैंने लिया है, सिर्फ उसका ही यूनिक कोड लेके, मतलब कंट्री का जो यूनिक वैल्यू है वही निकाल के लेके आऊंगा, तो इसका ये प्रॉपर वैल्यू निकल के यहाँ पे आएगा। बट मैंने इसको यहाँ पे 4 कॉलम्स क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं मोर देन वन कंडीशन लगा के आपको सबमिट दिखाने वाला हूँ। सो यू डोंट नीड टू वरी। अभी तो ये यहाँ पे आपका देखेंगे, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया रिपीटेड है, तो ये सेम जो आउटपुट है आपका, ये यहाँ पे सेम ही आ रहा है। बट मैंने यहाँ पे आपको ड्रैग करके क्यों दिखाया, सपोज आपका अगर एक ही कॉलम में आपको लगाना है और नीचे उसको फार्मूले को ड्रैग करना है, तो आपको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप इसको कॉपी करके जब राइट साइड में लेके जाएंगे,
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये B5 है, यहाँ पे C5 हो गया। मेरा जो जिस कॉलम के बेसिस पे हमको निकालना है सम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे B5 में ही है। वो तो मैं राइट साइड में भी अगर फॉर्मूले को अगर कॉपी पेस्ट करूंगा तो मेरा जो अ, रहेगा वो कंट्री के बेस पे ही मुझे निकालना है, ना कि मुझे स्टेट के बेसिस पे निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब एक कॉलम से ज़्यादा आपको आउटपुट, अगर उस फॉर्मूले को आपको राइट साइड में मूव करके या कॉपी करके मूव करना है, तो वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो बी के पहले है, इसके पहले आपको डॉलर लगाना है। उसके बाद देन आपको नीचे ड्रैग करना है। फिर आप जब इसको राइट साइड में इसको फॉर्मूले को पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, वही सेम फिगर रिपीटेड हो रहा है। बिकॉज उसका भी लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ। अभी हम क्या करेंगे कि हमारा जो पहला शीट है वहाँ पे और इस शीट में हमारा जो आउटपुट निकालने का जो कॉलम्स हैं वो सीक्वेंस ऑर्डर में है। आप देख सकते हैं ऑर्डर क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। सो अभी आप जाएंगे फर्स्ट शीट में तो यहाँ पे आप भी देखेंगे, यहाँ पे भी जो मेरा सीक्वेंस है, ऑर्डर क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू, सो ये सीरियल में है। आप देखेंगे एकदम सेम सीक्वेंस में है। सो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने सम रेंज दिया है, लास्ट में जो मैंने सम रेंज का जो सिलेक्शन दिया है, इसको हम फ्रीज नहीं करेंगे, इसको अनफ्रीज कर देंगे। ठीक है, फिर इसको नीचे डबल क्लिक करके हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। फिर जो है हम इसको भी राइट साइड में जब मूव करेंगे तो जो हमने सम रेंज दिया है वहां पहले शीट में तो ये सीक्वेंस ऑर्डर में है, तो इसके लिए ये LMNO ऑटोमेटिक ये आपका चेंज होता रहेगा, आपको मैन्युअली कॉलम्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं सारे में कॉलम्स में अलग अलग आउटपुट आ रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑर्डर क्वांटिटी वो पहले वाले शीट में L कॉलम्स में है, और यूनिट कॉस्ट M में है, यूनिट प्राइस N में है, कॉस्ट O में है, और रेवेन्यू J में है। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी हम बढ़ते हैं कि अभी हमको सम इफ नहीं यूज करना है। मैं अपने सारे एक्सेल यूजर को सजेस्ट करूंगा को ऑलवेज यूज सम इफ एस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इज इक्वल टू सम इफ यस। मुझे जैसा कि मैंने आपको बताया कि सम इफ एंड सम इफ यस में देखेंगे तो जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर के वो आगे पीछे हैं, सेम नहीं है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। अभी सम इफ में सम रेंज लास्ट में उसने पूछा, लेकिन यहाँ पे सम रेंज स्टार्टिंग में ही पूछ रहा है, तो आपको सिलेक्शन प्रॉपर ही लेना है। सो आप एक्सेल में मिस्टेक से बचना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सिलेक्शन, जो एक्सेल के जितने भी फंक्शन हैं, आपको सिलेक्शन, आप अगर आप समझ गए कि हमारा सिलेक्शन क्या है, हमको कहाँ फ्रीज करना है, कहाँ से कैसे सिलेक्ट करना है डेटा को, अगर आप ये प्रॉपर समझ गए तो फिर आप एक्सेल में मिस्टेक नहीं करेंगे। जो कि ये काफ़ी एक्सपीरियंस वाले एक्सेल यूजर ये मिस्टेक करते हैं, मैंने देखा है कि वो कंफ्यूज होते हैं कि हमको सिलेक्शन कैसे लेना है। और कुछ ऐसे एक्सेल यूजर होते हैं कि अभी सम इफ ही मैं बता रहा हूँ आपको या सम इफ यस बता रहा हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कि उसमें अगर किसी ने, उसके कलीग ने या किसी और ने उसमें 3 या 4 या 5 या 6 मल्टीपल कंडीशन अप्लाई किया है, तो उनको लगता है कि अरे इतना बड़ा इसने फंक्शन, इतना बड़ा फार्मूला लगाया है, तो कंफ्यूज होते हैं कि इतना बड़ा कैसे। बट इसमें है कुछ नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो पहला पैरामीटर्स है वही मेन है, बाकी सेम वही सेम थिंग्स रिपीट होता रहता है। सपोज जैसे मैंने आपको बताया क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया रेंज 4, क्राइटेरिया 4। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, इसीलिए मैंने यहाँ पे आप 4 कॉलम्स लिए हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, 5, 6, 7, 8, जितना आपको चाहिए। तो पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे पूछ रहा है सम रेंज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखेंगे मुझे ऑर्डर क्वांटिटी निकाला है, तो ए मेरे फर्स्ट शीट में L कॉलम्स में है। ठीक है, अगर आप एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक से अगर आप फंक्शन या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो एक्सेल क्या करता है, उसको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली फ्रीज कर देता है। आप देखेंगे कि यहाँ के L के पहले डॉलर लग गया। बट अगर आपका एक ही वर्कबुक है और उसके अंदर शीट 1, शीट 2, शीट 3 अलग अलग शीट हैं,
तो वहाँ पे एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक फ्रीज नहीं करता है, वहाँ पे जाके आपको मैन्युअली फ्रीज करना पड़ता है। फिर भी आपको वहाँ पे फ्रीज करना ही करना है, क्योंकि अगर आप टेबल रेंज को अगर फ्रीज नहीं करेंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप एक ही कॉलम में फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करना चाहते हैं ठीक है, बट अगर आप उसको राइट साइड में मूव करना चाहते हैं तो कॉलम्स के रो के पहले तो डॉलर्स नहीं लगाने का, फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका रो जो है जब उस फंक्शन को या फार्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो आपका रो 2 3 4 5 6 वो मूव होता रहेगा, बट जो आपका कॉलम रहेगा बेस वैल्यू वो आपका फ्रीज ही रहेगा। सपोज मेरा कंट्री जी कॉलम में है, सो जी कॉलम आपका फ्रीज रहेगा, रो फ्रीज नहीं रहेगा। सो हम देते हैं कॉमा। अभी आप देख सकते हैं कि ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, जहां पे भी क्राइटेरिया रेंज रेंज जहां पे आता है, जैसे क्राइटेरिया रेंज, सो क्राइटेरिया रेंज मतलब आपको पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है। सो वहाँ पे मेरा पहला कॉलम जो है दूसरे वाले शीट में कंट्री है, तो मैं यहाँ पे मैं एक कंट्री का जो कॉलम है फर्स्ट शीट में, जहाँ से मेरे को आउटपुट सर्च करके लेके आना है, तो इसको आपको पूरा का पूरा आपको सिलेक्ट करना है पूरा कॉलम, कॉमा। अभी ये पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया रेंज मेरा कंट्री का जो कॉलम है वो पूरा सिलेक्ट कर दिया मैंने। क्राइटेरिया 1 में मेरा क्या रहेगा, हम ये वाले शीट में जाएंगे, क्राइटेरिया, मेरा क्राइटेरिया सिर्फ यही रहेगा, कर्सर आपको सिर्फ एक ही सेल में रखना है, यहाँ पे आपको पूरा कॉलम सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्राइटेरिया रेंज में आपने उस पहले शीट से पूरा का पूरा कॉलम्स कंट्री का सिलेक्ट किया, बट क्राइटेरिया के लिए आपको सिर्फ ये मुझे कनाडा सर्च करना है। कहाँ सर्च करना है, पहले वाले शीट में कंट्री के कॉलम में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही कर्सर में सेल में कर्सर रखना है, कॉमा मैंने दिया। अभी जैसे मैं आपको बताया, सपोज मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसके पहले भी जो मैंने निकाला था सम इफ, उसमें भी सेम आउटपुट आया था निकल के। यहाँ पे भी मैंने सिर्फ एक कंडीशन लिया, जो कि सम इफ और सम इफ एस, यहाँ तक को पहले कंडीशन तक ठीक है, सिर्फ पैरामीटर्स हमारे चेंज हुए हैं। सपोज वहाँ पे सम रेंज लास्ट में पूछता है, यहाँ पे पहले पूछता है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ पहला कंडीशन ही दिया है। अभी इसमें हम 2 3 4 इसमें ऐड करते जाएंगे, कॉमा दिया हमने। अभी ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा दूसरा जो कॉलम है स्टेट का है, तो हम जाएंगे वो पहले शीट में जहाँ से हमको सर्च करना है। ये देख सकते हैं एच कॉलम में पहले शीट में स्टेट है, तो इसको भी हम पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा देते हैं। ये पूछ रहा है क्राइटेरिया 2, सो क्राइटेरिया 2 में भी मेरा ये मुझे एक ही सेल में पूरा, यहाँ पे भी पूरा सिलेक्शन नहीं देना है, सिर्फ ये कर्सर मुझे एक ही सेल में रखना है, स्टेट का जो पहला रो रहेगा स्टेट के नीचे में क्राइटेरिया, बिकॉज क्राइटेरिया रेंज आपका पूरा कॉलम्स हो गया, जो कि वो पूरे कॉलम्स में जाएगा और ये स्टेट को सर्च करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा। बढ़ते हैं कंडीशन 3, आप देख सकते हैं आप क्राइटेरिया रेंज 3। अब हम बढ़ते हैं वो पहले वाले शीट में, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी, तो इसको भी मैंने पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया। वापस से हम आते हैं, यहाँ पे अभी क्राइटेरिया 3 में आपका ये आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया रहेगा। वापस से हमने कॉमा दिया। अभी ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 4, क्राइटेरिया रेंज 4 आपका ये हो गया सब कैटेगरी, पूरा का पूरा सिलेक्ट किया। यहाँ पे हम दूसरे वर्कशीट से सर्च कर रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट फ्रीज कर दे रहा है, तो हमको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी ये पूछ रहा है क्राइटेरिया 4, क्राइटेरिया 4 में मेरा ये आ जाएगा। अभी यहाँ तक सपोज मैं आपको एंटर मार के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे कि इसके पहले जो मैंने एक ही कंडीशन पे जो मैंने फंक्शन अप्लाई किया था, वहाँ पे कुछ 1,92,000 आ रहा था आउटपुट, लेकिन अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जबकि मैंने इसको फिल्टराइज कर दिया कंट्री, फिर कंट्री के बेसिस पे जाके ये स्टेट का, फिर वो स्टेट के अंदर भी सिर्फ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कैटेगरी के अंदर भी जाके ये सब कैटेगरी है बाइक रैक्स करके, उसका मुझे आउटपुट निकाल के इसने लाके दे दिया। सो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पहले शीट में और ये वाले शीट में जहाँ पे आप जिस शीट में काम कर रहे हो, अगर आपका ऑर्डर सीक्वेंस में है,
कंटिन्यू में है। तो जैसे कि मैंने ये जो मेरा फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एल कॉलम, इसको हम अनफ्रीज कर देंगे। ठीक है, इसको अनफ्रीज कर देंगे। और आपको ध्यान में रखना है क्राइटेरिया रेंज वाले जितने भी कॉलम्स हैं वो तो बाय डिफॉल्ट फ्रीज हैं, तो वो फ्रीज ही रहेंगे। बट ये आपके जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया 1 2 3 4, उसके कॉलम के पहले आपको डॉलर लगाना है, बिकॉज रो आपका नीचे चेंज होता रहेगा, लेकिन मेरे को ये सेम फॉर्मूला राइट साइड में कॉपी करना है। तो बी का सी ना हो, तो बी को आपको फ्रीज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सी के पहले भी जितने भी क्राइटेरिया मैंने लिया है सारे के लिए मुझे कॉलम फ्रीज करना है। बिकॉज क्या है, हम उसको अगर राइट साइड में कॉपी करेंगे तो वो सी का डी, डी का ई, ई का एफ हो जाएगा, तो आपका आउटपुट करेक्ट नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं अभी हम इसको सेम कॉपी करते हैं, राइट साइड में इसको मूव कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर आउटपुट निकल के हमारा आ गया है। एल सम रेंज हमारा एल, उस शीट में ये एम एन ओ पी। अभी हम क्या करेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और एक यहाँ पे हम प्लस आइकन पे रखेंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे और नीचे इसको ये ऑटोमेटिक पूरा ड्रैग हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये हमारा जो आउटपुट है ये प्रॉपर करेक्ट निकल के आ गया। अगर आपने पाइवट टेबल यूज किया रहेगा तो आपको पता रहेगा ये सम इफ भी एज ए पाइवट टेबल ही मतलब समराइज करके लाता है। बट पाइवट टेबल में आपको जाके फॉर्मेटिंग करना है, ये करना वो करना, फिल्टर लगा। यहाँ पे आपको ये एज ए आउटपुट आपका ये जो सम इफ भी जो काम करता है वो पाइवट टेबल की जैसे ही काम करता है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा कुछ रिपीटेड वैल्यू नहीं आ रहा है, बिकॉज मेरा यहाँ पे कंट्री सपोज यहाँ पे आप देखिए कंट्री मेरा ऑस्ट्रेलिया ही है, यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया ही है, लेकिन स्टेट आप देखेंगे ये अलग है। तो इसके लिए इसका जो आउटपुट है ये अलग है, इसका आउटपुट जो है अलग है। तो आप देख सकते हैं नाउ इट्स वर्किंग प्रॉपरली। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया सम इफ और सम इफ यस में क्या डिफरेंस है। आई होप अगर आप ये मेरा वीडियो स्टार्टिंग टू एंड देखेंगे तो फिर आपको सम इफ और सम इफ यस में कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें खुद 4 कंडीशन अप्लाई किया है, आप 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको प्रॉपर जाके सिलेक्शन वहाँ पे लेना है बस। अभी यहाँ पे तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ये सीक्वेंस ऑर्डर में है, तो मैंने यहाँ पे जो सम रेंज है उसको फ्रीज नहीं किया। सपोज ये शीट में मेरा जो कॉलम है ये कहीं एक एल में है, कहीं एक जे में है, कहीं एक एन में है, कहीं एक पी में है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जो मैंने इसको अनफ्रीज किया वो आपको फ्रीज करना पड़ेगा, वो आपको फ्रीज करना पड़ेगा। फिर सपोज आपको सेम यही फॉर्मूला राइट साइड में पेस्ट कर दिया मैंने, तो आप देख सकते हैं कि ये सेम आ रहा है। बट सपोज मेरा यूनिट कॉस्ट यहाँ पे कॉलम, सपोज मेरा यहाँ पे यूनिट कॉस्ट सपोज कॉलम डी में होता, ये पहले वाले शीट में कॉलम डी में होता, तो हम क्या करते, ये जो हमारा क्राइटेरिया 1 2 3 4 वो तो करेक्ट ही रहेगा। सिर्फ जो मैंने स्टार्टिंग में सम रेंज सिलेक्ट किया है तो मेरा एल की जगह पे यहाँ पे मैं डी कर दूंगा, नथिंग एल्स। सिर्फ आपको इतना ही करना है, सिर्फ वो सम रेंज का कॉलम ही आपको एक चेंज करना है मैन्युअली। ठीक है, अभी वहां पे डी में तो है नहीं तो जीरो आएगा, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, सो डोंट वरी। सिर्फ इतना ही करना है, ऐसा नहीं है कि मैंने सीक्वेंस में है तो ये सम इफ और सम इफ यस सीक्वेंस में ही काम करेगा। सो डोंट वरी फॉर दैट। ये आपका लेफ्ट राइट ऐसा भी नहीं है कि वी लुकअप के जैसा, सिर्फ आपको किसके बेसिस पे निकालना है। सिलेक्शन आपको पैरामीटर्स प्रॉपर फॉलो करने हैं, आपका कुछ भी मिस्टेक होने वाला नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि वी लुकअप को जैसा से लेफ्ट से राइट से सीक्वेंस में रहेगा तभी ये फंक्शन काम करेगा सम इफ और सम इफ यस। तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, अभी ये देख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 कंडीशन लेके आपको सम इफ यस दिखा दिया। आपको 2 लेना है 2 लीजिए, 3 लेना है 3 कॉलम से काम करिए, 4 है तो 4 5 जितना आपका रहेगा। सपोज यहाँ पे मैंने 4 लिए, आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे एक कोई और ऐड कर देता हूँ। ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 5, अभी हम चलते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 5 में मैं कुछ ले लेता हूँ, ये प्रोडक्ट का भी ले लेता हूँ, या अभी स्टार्टिंग में कोई और है क्या, सारे के सारे टेक्स्ट में नहीं सब न्यूमेरिक ही हैं।
यही ले लेते हैं हम के कॉलम। ठीक है, मैं पांचवा भी ऐड करके दिखा देता हूँ। फ्रीज किया इसको। क्राइटेरिया 5 में सपोज मैंने यहाँ पे कॉलम नहीं लिया है तो मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 0 आया क्योंकि यहाँ पे जो मैंने सिलेक्शन दिया क्राइटेरिया 5 के लिए। अभी मैं पहले शीट में जाता हूँ, प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ नीचे से कोई, या ऊपर से ही ले लेता हूँ अभी आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो क्राइटेरिया 5 E5 यहाँ पे मैंने दिया M5, तो M5 आप देखेंगे ये M5 मैंने सिलेक्शन दिया है। यहाँ पे मैं वो चीज को पेस्ट कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं 825 पहले था हमारा आउटपुट। प्रोडक्ट मैंने इसमें एक पांचवा कंडीशन भी ऐड कर दिया प्रोडक्ट। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पांचवा कंडीशन भी ऐड कर दिया। आई होप अभी आपको जितने भी सम इफ और सम इफ एस के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स रहेंगे क्लियर हो गए रहेंगे। अगर फिर भी इसके अलावा भी अगर आपको सम इफ एस में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन कर सकते हैं। हम उसको ट्राई करेंगे जल्द से जल्द कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।